جی آپ میرے پاؤں دیکھیے، میں پالنے میں جس طرح کی شخصیات آج مدعو ہیں، میں خود کو ایسا نہیں پاتا کہ گفتگو کر سکوں ان کے ساتھ، اور نہ ہی خود کو قابل سمجھتا ہوں کہ ان کے گفتار کا یا کار کا یا عملی کردار کا مقابلہ کر سکوں کسی بھی طور پر۔ بہرکیف حکم کی صورت آگے نہیں ہے۔ اقبال کا پاکستان، یہ موضوع جس کی مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس اعتبار سے پیچیدہ ہے کہ اقبال پاکستان کے بننے سے قریب ایک دہائی پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، جس وقت کسی اور طرح کی فوکس کا سیاسی فکر کے متقاضی تھا۔ تو مزید یہ کہ اپنی نوعیت اور جامعیت کے اعتبار سے بھی یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ اس کی وسعت کا غالباً 20 نشستوں میں بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس گفتگو کو 20 منٹ میں سمونے کی غرض سے جن خیالات کا اقبال نے مختلف مقامات پر نہایت موزوں اور جازب الفاظ میں بڑی فصاحت سے اظہار کر دیا ہے، میں اس میں کسی اضافے کی بجائے اکتفا کروں گا کہ اسی سے کچھ کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کے سوا میں کوئی چارہ نہیں پاتا کہ جو بھی تفاصیل و تشریحات ہیں انہیں سوالات کے لیے یا ہماری جو اقبال کا اسکینڈینیویا ہے اس کے اسٹڈی سیشنز کے لیے اٹھا رکھا جائے۔ جب ہم اقبال کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے نزدیک وطنیت، وطن پرستی، نیشنلزم یہ دور حاضر کے، عصر حاضر کے بنائے ہوئے جھوٹے بت سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ آتے ہیں اس دور میں اور ہے، جام اور ہے جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشید آئے تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشان آئے دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے مصطفی ہے۔ پڑھتے جائیے، بے شمار جگہوں پر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور نرالا سارے جہاں سے اس کو رب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے سارے ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کا جب ہم تصور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کا تصور پاکستان اس کے تصور مملکت اسلامی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے الفاظ میں جس اسلامی ریاست کا انہوں نے تصور پیش کیا، جس کا خواب انہوں نے دیکھا، اس کا مطلب مقصد، اس کا محرک و مقصد کیا تھا کہ مقاصد ہی ہمارے مطلوب راستوں کی نشاندہی اور اٹھتے قدموں کی سمت کا صحیح تعین کرتے ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں مملکت ایک کوشش ہوتی ہے مطلوب اصولوں کو، اور اگر اقبال کے حوالے سے بات کی جائے تو قرآنی اصولوں کو زمان و مکان میں صورت پذیر کرنے کی، یہ آرزو ہوتی ہے ان اصولوں کو کسی خاص انسانی ادارے میں روبائے عمل لانے کی، مطلب the realization of objective principles in this world of matter and their employment to human institutions۔ یعنی مملکت کی اہمیت اور اس کی مقصدیت اس وقت تک ہے جب تک ہماری زندگیوں کا اجتماعی نصب العین اور اس کے لیے ہماری جد و جہد زندہ ہے، اور جب تک وہ مملکت اہل ہے، اہلیت رکھتی ہے اس بات کی کہ وہ ذریعہ بن سکے، وسیلہ بن سکے ہمارے اس نصب العین تک پہنچنے کا، اس کے حصول کا۔ اور یہی ایک وجہ تھی جب ہمیں ہندوستان میں ایک نئی آزاد، ایک نئی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنا پڑا، اس کا تصور پیش کرنا پڑا۔ اقبال کے پاس جب ہم نے مدینہ میں مسلم آباد کاری کی تھی 1400 سال پہلے، اس کا بھی مطلب مقصود یہی تھا اور یہی محرک تھا تصور پاکستان کے پیچھے۔ یہ اور بات کہ اس وقت ہمارے
मकसद आला ने, उसकी जदोजहद ने हमें सिर्फ 2 दहाइयों में एक अजीम शान सल्तनत का वाली वारिस बनाया, एक अजीम शान तरीन कौम के तौर पर तश्कील पा सके। और क्या पाकिस्तान के बाद उसी मकसद को फरामोश करने के बाद, उसको बस कुछ डालने के बाद, हम 6 दहाइयों के बाद भी ज़रीर रुस्वा हैं, और पहले से कहीं ज़्यादा ज़रीर रुस्वा हैं। तो इकबाल का जो 1930 का सदारती खिताब है मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में, उससे लोगों की अक्सरियत वाकिफ है। ये खुतबा इलाहाबाद के नाम से मशहूर है। ये वो खुतबा है जिसमें पहली मरतबा महसूस तौर पर एक इस्लामी रियासत या एक से ज़्यादा इस्लामी रियासतों का तस्वुर और उनका मुतालबा पेश किया गया था। तो जब हम बात करते हैं इकबाल का पाकिस्तान की, तो उसके हवाले से यकीनन आप समझते हैं कि इसकी अहमियत बहुत ही बुनियादी है। मौके और नौयत के एतबार से ये सियासी जलसा था, सियासी खिताब था, मगर जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पहले कम अज़ कम 3 सफ़हात सिर्फ इस्लाम और इस्लामी तसव्वुरात, इस्लाम का तसव्वुर सियासत, तसव्वुर मुआशरत, उस पर मबनी फरमाते हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लाम जो कि एक इखलाकी नस्ब-ओ-नैम और एक मखसूस सियासत और मुआशरत का मजमुआ है, जिससे मेरी मुराद एक ऐसे मुआशरे तो जो 2 इक़्तिबासात में हमने देखा, इकबाल कायल थे कि एक मस्त शुदा सूरत के जो पाकिस्तान में हम बात देख रहे हैं। दूसरा, एक जमाती निज़ाम, सिंगल पार्टी सिस्टम, इसके हवाले से जो नफ्सियाती और फ़लसफ़ियाना एतबार से जो इसकी वजाहत है, उसकी अपनी एक बहुत अहमियत है, मगर वक्त की कमी के बायस वो उसे हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे, वो इस वक्त मुमकिन नहीं। नंबर 3, बहुत अहम नुक्ता, इस्लाम के ईजाबी हरकियाती, अमली और इर्तकाई पहलू जो हैं, जो इसकी इस्लाम की वाइटल और प्रोग्रेसिव नेचर है, उसका सियासत और मुआशरत में निज़ाम पर अमली इतलाक़। ये इस्लाम के वो पहलू हैं जो इंतहाई बुनियादी खवास होने के बावजूद इंतहाई ज़्यादा फरोमुश करता है। अगर हम इस्लाम की सियासी फ़िक्र के हवाले से भी बात करें तो इज्तिहाद की इस सूरत के बगैर वो बहुत ही कह लीजिए वो निज़ाम मस्क हो जाता है। इस पे रिकन्स्ट्रक्शन के जो चढ़ा खुतबा है इकबाल की सियासी फ़िक्र का एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है। उन्होंने इस पर बड़ी सराहत से, बड़ी फसाहत से बयान किया है। हादी साहब इस पे बाद में कुछ ज़्यादा इल्मी अंदाज से गुफ्तगू करेंगे बजाय उस मुजरद अंदाज के जो मैंने अपनाया। चौथा, इकबाल के नज़दीक मुआशियात और जो इक़्तिसादी मामलात हैं वो किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई, किसी मुल्क के मुआशरती, उसके समाजी, उसके सियासी निज़ाम में इंतहाई मरकज़ी हैसियत रखते हैं। बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं इस बात से कि इकबाल ने जो अपनी पहली तसनीफ़ जो लिखी थी वो फ़लसफ़े या शेर पे नहीं थी, वो बल्कि इक़्तिसादियात पर और मुआशियात पर थी, इक़्तिसाद के नाम से। अलामा है इस बात के कि रिस्क के जो सरचश्मे हैं, खेत खलियान, कारखाने, उन पर इनफरादी मलकियत, उन पे प्रोप्राइटरी ओनरशिप सरासर एक बातिल तस्वुर है। और यही वो तस्वुर है अनफॉर्चुनेटली जिसने पाकिस्तान को इतने अरसे से सरतान की तरफ खोखला कर दिया है। इकबाल की तहरीर मुआशियात पर इकबाल के फ़लसफ़े से भरी पड़ी, किस तरह का मुआशरा, किस तरह का निज़ाम देखते थे। मगर ये भी इतना बड़ा मौजू है कि इस पर इस वक्त इंसाफ नहीं हो सकता, मैं इसकी मज़ीद गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। अलबत्ता ये तय है कि जागीरदारी, सरमायाकारी या कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ इश्तराकियत या कम्युनिज्म, इनमें से किसी की भी इकबाल के पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं थी। इकबाल इसको 2 इंतहाई गर्दान थे, अफराद और तफरीद की सूरत समझते थे। जब हम इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान और एक लार्जर व्यू पॉइंट से इकबाल के तस्वुर मिलत इस्लामिया के हवाले से बात करते हैं तो फिर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि इस्लाम और मजहबी पेशवाइयत, जिसका साहब ने भी जिक्र किया, थियोक्रेसी या मजहबी इजारादारी,
इन दोनों का फ़र्क भी बताया जाए, जिनको अमूमन मिलाकर पेश कर दिया जाता है उन लोगों की जानिब से जो सेकुलरिज्म की हमायत में बात करते हैं। और इसके साथ ही एक और मसला भी जुड़ा है जो है हमारे तहजीबी, सकाफती, मजहबी आज़ादी और मुख्तारी का के आम अफराद के लिए, और जो जुड़ा है अक़लियतों के हकूक़ का। तो इस पर बहुत मवाद है गुफ्तगू के लिए, लेकिन मैं खुद को कंफाइंड रखूँगा सिर्फ इकबाल के जो 1930 का ही खुतबा इलाहाबाद है उसमें, उसी से कुछ मज़ीद तबासात पेश करने की चाहूँगा। कहते हैं जी, ये असूल कि हर जमात को अपनी मखसूस बुनियादों पर आज़ादाना नशोनुमा का हक है, किसी तंग नज़र गिरोहबंदी के जज्बे से, किसी नैरो माइंडेड कम्युनलिज्म के जज्बे से जन्म नहीं लेता। गिरोहबंदियाँ बहुत तरह की हैं। एक ऐसा गिरोह जो दूसरी अक़वाम की जानिब बदखाही के जज्बात का मिलान रखता हो, नीच और पस्त फितरत है। मैं दूसरी अक़वाम के रसूम और रवाज, कवानीन, मजहबी, मुआशरती इदारात का बेहद एहतराम करता हूँ, बल्कि कुरानी तालीमात के मुताबिक तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ज़रूरत पड़ने पर उनके मुआबिद का बराह रास्त दिफा भी करूँ। गिरोहबंदी के बुलंद पहलू की कदर व कीमत को तो नेहरू रिपोर्ट के वाज़ईन ने भी तस्लीम किया है और कहा है कि मुमलिकती नुक्ता नज़र से ये कहना कि जमाती बुनियादों पर सूबे का क़याम नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है जैसे बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र से ये कहा जाए कि मुल्क नहीं होना चाहिए। तहज़ीब व तमद्दुन के बाब में मुकम्मल आज़ादी और सेहतमंदाना पहलुओं की हामिल गिरोहबंदी के बिना एक हम आहंग कौम का वजूद भी मुश्किल है। इससे हमें ये भी फिक्र मिलती है कि इकबाल के सूबाई को मुख्तारियों और अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में तसव्वुरात क्या थे, वो नई इस्लामी रियासत के अंदाज़ में थे। हिंदू समझते हैं कि कौम लफ्ज़ से मुराद एक तरह का आफाकी इंतज़ाम है जिसमें कोई गिरोह अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार नहीं रख सकता। ऐसी किसी चीज़ का ना तो कोई वजूद है और ना ही कोई वजूद होना चाहिए। हिंदुओं को ये खौफ भी नहीं होना चाहिए कि खुद मुख्तार मुस्लिम रियासतों के क़याम का मतलब इन रियासतों में मजहबी इजारादारी होगा। मतलब ये बावजूद उस सारी सोच और सारी फिक्र के है कि इस्लाम का नफाज सियासी और माशरती निज़ाम में होना चाहिए, लेकिन वो मजहबी इजारादारी नहीं होती। मैं पहले ही तज़किरा कर चुका हूँ कि लफ्ज़ मजहब का इतलाक़ जब इस्लाम पर होता है तो इसके क्या मानी होते हैं। सच तो ये है कि इस्लाम एक मरकज़ी कलीसा का नाम नहीं, एक मुस्लिम रियासत का किरदार टाइम्स ऑफ इंडिया के इस तस्करे से हो सकता है जो उन्होंने कुछ अर्सा बेशतर इंडियन बैंकिंग कमेटी के बारे में अपने इफ्तिताहिया मकाले में किया था। कोट, कदीम हिंदुस्तान में हुकूमत की तरफ से शरह सूद के तयन के लिए कवानीन वज़ा किए जाते थे, मगर इस्लामी अदबार में को इस्लाम में सूद की वाज़ेह मुमानियत है। हिंदुस्तानी इस्लामी हुकूमतों ने इन पर कोई इनके हवाले से कोई पाबंदियाँ आयद नहीं की। लिहाजा में हिंदुस्तान और इस्लाम दोनों के मुफाद में एक इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा करता हूँ। हिंदुस्तान के लिए इसमें अंदरूनी ताकतों के तवाज़ुन के नतीजे में पैदा होने वाला अमन व अमान और दिफाई कुव्वत होंगे। इस्लाम के लिए ये मौका होगा कि खुद को इस तासुर से आज़ाद करे जो अरबी ममलूकियत ने इसे दिया है, कि ये अपना कवानीन, अपनी तालीमात, अपनी तहजीब को मुतहर्रिक कर सके और इन्हें अपनी ही असर रूह और असर हाजिर के मिजाज के करीब कर ला सके। यानी अगर सेकुलर सिस्टम का मतलब और मकसद तहजीबी, मजहबी, सकाफती आज़ादी है तो गालिबन इस्लाम बज़ाते खुद सबसे बड़ा सेकुलर निज़ाम है। लेकिन अगर इसका मकसद लादीनियत है या जो हमारी मुस्तकिल इक़दार हैं, जो यूनिवर्सल मुस्तकिल इक़दार हैं, यूनिवर्सल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, उनका इखराज है हमारे माशरती और सियासी और समाजी रवैयों से, तो इस्लाम उसको उसी तरह से चैलेंज करता है जिस तरह से वो थियोक्रेसी और मजहबी इजारादारी को चैलेंज करता है। जो मजहबी इजारादारी के वो तस्वुरात जो यहूदियत और ईसाईयत ने अपने अखबार में पेश किए थे और राज किए थे। कहने को बहुत कुछ है, वक्त का तकाज़ा है कि समा फराशी को हासिल किया जाए। हम एक शख्स था जो जानता था कि ख्वाब कैसे देखे जाते हैं और ये भी कि उनकी ताबीर कैसे की जाती है। इसका तख़य्युल और हीता इम्कान की रसाई
वसत अखलाक से परे थी, कि चश्मे तखय्युल एक जन्नत की तख्लीक करती थी तो उसके फिरासत की ताबनाकियाँ उन तक पहुँचने के रास्ते भी वाज़ेह करती चली जाती। वो शख्स नहीं रहा। इकबाल का पाकिस्तान क्या था, इसका तज़किरा उनके रिकंस्ट्रक्शन के खुतबात से लेकर जावेद नामा में फल्के मरीख और मरदैन के हवाले तक जा बजा मकामात पर आपको नजर आएगा। इसमें ख्वाब भी हैं और ख्वाबों को सच्चा कर दिखाने तक के रास्ते भी। अगर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा सिर्फ एक ख्वाब के तज़किरे के साथ, 1932 मुस्लिम लीग का सालाना इजलास, उसका सदारती खुतबा। The faith which you represent recognizes the worth of the individual and disciplines him to give away his all to the service of God and man. Its possibilities are not yet exhausted. It can still create a new world where the social rank of man is not determined by his caste or color or the amount of dividend he earns, but by the kind of life he lives, where the poor tax the rich, where human society is founded not on the equality of stomachs but on the equality of spirits, where untouchable can marry the daughter of a king, where private ownership is a trust, and where capital cannot be allowed to accumulate so as to dominate the real producer of wealth. The superb idealism of your faith, gentlemen, needs emancipation from the medieval fancies of theologians and legists. ये ख्वाब अधूरा रह गया जिसे हमने अधूरा नहीं छोड़ा।